Hello friends, this is V from Saraswati Classes, Narol, Ahmedabad. Friends, today's topic is final accounts of partnership. Today we are going to start the very first question related with final accounts. Friends, this is a long question, need a lot more concentration. So be over here from the very first entry till the last one. Okay friends, so let's start with the first question. Before starting the first question, I would like to ask you one thing: why we are preparing final accounts? So it's simple answer. If I give you, the final accounts are to be prepared to know the financial condition of the company, whether the company is strong or weak, whether the company is progressing or deprogressing, whether the company is in the strong market or in a down market, in which condition company is over there, company is standing here in the market, whether there is a life ahead of this company or not. These all questions arises. To solve these questions, we have to prepare final accounts. Friends, as we know, as we have studied in 11th standard, while preparing final accounts, we prepared 3 accounts: trading account, then second profit and loss account, and finally balance sheet. Here, 2 more accounts added in this section. These 2 accounts are profit and loss appropriation account, which we have studied in chapter number 1. This is your chapter number 2, contain of 11 marks. Compulsory 11 marks question. This will be seen in the board examinations. So, the very first question we are going to start, question number 8 of textbook given here. Brahma and Vishnu are partners of firm sharing profit and loss in the proportion 3:2. From the trial balance sheet dated 31st March 17 and the adjustment, prepare annual accounts of the firm. Okay, you have given the old ratio. Why the old ratio is given? The old ratio is given to calculate the profit, profit or loss, whatever we get at the end of the year. First of all, you have given drawings. So drawings को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे टू drawings account. How much the amount is? 5,000 and 5,000 respectively. Second one, leasehold building. The leasehold building is our asset. It is to be written over here, leasehold building. Amount is given to you 60,000 rupees. So friends, वीडियो को मैं थोड़ा स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पर. After then I will let you inform each and everything in detail, because it will take a lot more time if I do all the entries one by one in during the video. So मिलते हैं थोड़ी देर बाद. Till then. So friends, ट्रायल बैलेंस शीट की मैंने एंट्रीज सेट कर दी हैं. पहले हम डिस्कस कर लेते हैं उसको. तो व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट, स्टार्टिंगली आपको सबसे पहले दिया था ड्राइंग्स. तो ड्राइंग एक्सपेंस है पार्टनर्स का, ठीक है. सो हम क्या करेंगे, उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट कर देंगे. 500, 5,000, 5,000. लीज होल्ड बिल्डिंग इज एन एसेट, फिक्स एसेट. तो हमने एसेट्स के कॉलम में वहाँ दिखा दिया लीज होल्ड बिल्डिंग 1/4/16 से 10 ईयर्स के लिए, ठीक है फ्रेंड्स. देन आफ्टर मशीनरी, इट्स ऑल्सो अ फिक्स एसेट, तो वहीं दिखाएंगे 50,000. डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस ऑफ बिजनेस. तो खर्चा जो है सारा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड. डेटर्स 40,000 यूरो करंट एसेट. और 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन छोड़ देंगे. हमेशा डेटर्स में कोई ना कोई ट्रांजैक्शन तो होता ही है. इफ़ नॉट देन कोई इशू नहीं है, एरो करके बाहर निकाल देंगे. लेकिन जब भी हम एसेट्स की बात करते हैं तो सभी एसेट्स में इंडिविजुअली 1 लाइन 2 लाइन क्या करेंगे, छोड़ देंगे हम. कैरीज आउटवर्ड. कैरीज आउटवर्ड का मतलब होता है कि हमने कुछ मटेरियल बिजनेस के बाहर भेजा है तो उसका खर्चा, तो खर्चा है कहाँ जाएगा वो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर 1200. देन फर्नीचर पिक्चर्स फिक्स एसेट है तो एसेट में ट्रांसफर कर देंगे, लीव 1 लाइन एंड एरो आउटसाइडर. सैलरीज एंड एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इनर साइड क्यों, क्योंकि जब मैंने एडजस्टमेंट देखते हैं तो वहाँ पे सैलरी की रिलेटेड कोई एंट्री बाकी है तो हम उसको ऐड करेंगे या फिर माइनस करेंगे.
बैड डेट्स एज एन एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, लॉस ऑफ बिजनेस। सो जितने भी खर्चे हैं, जितने भी लॉसेस हैं और इनकम्स हैं, वो सब कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। खर्च है तो डेबिट साइड, इनकम है तो क्रेडिट साइड। बिल्स रिसीवेबल्स इज एन करंट एसेट्स टू बी रिटन ओवर ईयर इन एसेट्स कॉलम, बिल्स रिसीवेबल्स। देन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, तो ट्रेडिंग एक्सपेंस जो है बिजनेस में खर्चा ही है, कहाँ दिखा देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर। कैश बैलेंस करंट एसेट्स है तो एसेट्स के कॉलम में नीचे दिखाएंगे। देन क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन टू यू। नाउ फ्रेंड, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक के बदले में आपको ओपनिंग स्टॉक देते हैं, बट हियर इट इज गिवन क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 17। सो अब हमारा जो एंडिंग ईयर है वो भी 31 मार्च 17 ही है, और एंडिंग ईयर का एक क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, मतलब आपने जो यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट पहले से बना के रखा है, इसकी शायद अब आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको क्लोजिंग स्टॉक पहले से निकाल के दे दिया उसने, वो भी आपको ट्रायल बैलेंस शीट में। फ्रेंड्स, आप सबको इतना पता होना चाहिए, पता होगा, आई होप सो, कि ट्रायल बैलेंस शीट की जब हम एंट्रियाँ यहाँ पोस्ट करते हैं तो सभी ट्रांजेक्शन के सिर्फ और सिर्फ एक इफेक्ट दी जाती है। जब हम एडजस्टमेंट गिनेंगे तो एडजस्टमेंट के हर एक ट्रांजेक्शन की दो इफेक्ट देनी पड़ेगी। इन ट्रायल बैलेंस के सिर्फ और सिर्फ वन इफेक्ट इज टू बी गिवन, तो हमने दे दी यहाँ पे इफेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक हमने बैलेंस शीट में डायरेक्ट दिखा दिया। अब ट्रेडिंग अकाउंट में उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। आफ्टर दैट ऑन द क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट, सो कैपिटल हैज ऑलवेज अ क्रेडिट बैलेंस, तो जमा क्रेडिट साइड ले देंगे 55,000 और 45,000 दोनों पार्टनर्स का। लोन ऑफ ब्रह्मा इज अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी को लाइबिलिटी में दिखा देंगे। 50,000 डेट दिया तो डेट खास ध्यान रखना। डिस्काउंट रिसीव्ड एंड इज इनकम ऑफ बिजनेस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। देन आफ्टर क्रेडिटर्स, सो लाइबिलिटी है तो करंट लाइबिलिटी में उसको दिखा देंगे क्रेडिटर्स 25,000। अगर कोई इफेक्ट होगी तो अंदर लिखेंगे, नहीं है तो बाहर डायरेक्ट जाने दो, कोई इशू नहीं है। कमीशन अगर क्रेडिट साइड है तो हमें मिला होगा, हमारी इनकम हुई, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे कमीशन 2,500 ठीक है, इसलिए अंदर लिखना। बिल्स पेबल इज अ लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, सो उसको हम लाइबिलिटी में दिखा देंगे बीपी अकाउंट। एंड लास्टली ट्रेडिंग अकाउंट इज गिवन टू यू ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट का ब्रैकेट में लिख लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब ये क्लियर हो गया कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना नहीं। ठीक फ्रेंड्स, साथ ही जब आपको ट्रेडिंग अकाउंट या ग्रॉस प्रॉफिट पहले से दे दिया गया हो तो आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जा करके एडजस्टमेंट में चेक करो क्या ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कोई भी एंट्री बाकी तो नहीं है। अगर बाकी है तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट फिर से बनाना पड़ेगा, लेकिन पहले देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने नोटिस करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट से कोई भी रिलेटेड एंट्री यहाँ पर दी हुई नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रायल बैलेंस शीट। हमने हर एक ट्रांजेक्शन की एक एक इफेक्ट दे दी। ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ दिखाना है, तो ये तो बनाना नहीं है, तो डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट जो प्रॉफिट आया जिसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखा देंगे बाय द नेम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और ग्रॉस प्रॉफिट। नाउ स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट। हर एक एडजस्टमेंट की दो एंट्रियाँ। फर्स्ट वन, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 6% ऑन मशीनरी एंड 20% ऑन फर्नीचर। तो आपकी मशीनरी ये रही, -6% डेप गिवनी है, तो 6 30 3,000 आउटपुट कॉलम आएगा 47,000। तो डेप ऑन फर्नीचर लिखो यहाँ पर, डेप ऑन फर्नीचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा 3,000। नॉट फर्नीचर, इट्स मशीनरी। सेकेंडली, फर्नीचर एंड फिटिंग्स पर 20% गिनना है, 20% डेप गिननी है। सो 5,000 का 20 कितना हो जाएगा 1,000, आउटर कॉलम आ जाएगा 4,000। 1,000 जो डेप है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस और लॉस टू बी रिटन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। डेप ऑन फर्नीचर 1,000। फर्स्ट डन, दो इफेक्ट हो गए उसकी, दोनों की। रिटर्न ऑफ 500 फ्रॉम डेटर्स एज बैड डेट्स। आपके जो डेटर्स यहाँ 40,000 के हैं, इनमें से हम बैड डेट्स के रूप में अमाउंट को उड़ा देंगे। देखो यहाँ कस्टमर क्लियरली बोल रहे होंगे कि वी आर नॉट एबल टू पे यू 500 रुपीज। तो जब कस्टमर डायरेक्टली सामने से बोल देगा तो उतना पैसा हमारा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। ये रहा बैड डेट्स का एक फॉर्मेट होता है, बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस शीट, बैड डेट्स एडजस्टमेंट, बैड डेट्स रिजर्व एडजस्टमेंट, बैड डेट्स रिजर्व ट्रायल बैलेंस शीट। अभी आपने बैड डेट्स रिटर्न ऑफ दिया हुआ है 500 रुपीज, तो यहाँ पोस्ट कर देंगे सेकेंड इफेक्ट।
आफ्टर दैट एनुअल सैलरी 5,000 एंड 4,000 पेएबल। दोनों पार्टनर्स को हम सैलरी कितना पे करेंगे, 5,000 एंड 4,000। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएंगे, वहाँ पे ब्रह्मा विष्णु के नाम लिखेंगे, फर्स्ट का 5,000, सेकेंड का 4,000। पार्टनर से रिलेटेड कोई भी एंट्री होगी तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में फर्स्ट इफेक्ट देंगे, और सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 5,000 और 4,000 की पोस्ट करेंगे। क्या लिखेंगे, बाय, क्या नाम था, सैलरी अकाउंट। ओके, द नेक्स्ट कमीशन 500 इज रिसीवेबल, मतलब आपको अभी तक जो कमीशन 2500 मिला हुआ है उसमें 500 और रिसीवेबल है, मिलना बाकी है। तो जो रिसीवेबल है वो मिलेगा, देन इट विल बी 3,000। और रिसीवेबल जो होता है वो हमारी एसेट होती है, तो देखिए यहाँ पे रिसीवेबल कमीशन 500 रुपीज। आप ध्यान रखिएगा, हम एडजस्टमेंट में हर एक ट्रांजैक्शन की दो इफेक्ट पोस्ट कर रहे हैं। सिमिलरली नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज 3,000 रुपीज। अभी तक आपने सैलरी 7,000 पे किया हुआ है और अभी तक आपकी आउटस्टैंडिंग 3,000 और है। इन दिस वे आपको 10,500 सैलरी पे करनी थी, नहीं आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है, 10,000, सॉरी 3,000। So those 3,000 is the liability of firm and should be paid. So this is all about the journal entry and adjustment friends. अब कुछ गुप्त एंट्रियां, कुछ सीक्रेट जो होती हैं वो एंट्री, जैसे लीज होल्ड प्रॉपर्टी आपकी 60,000 की है, 10 इयर्स के लिए दिया हुआ है। इसके बारे में अंदर कोई स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है, 10 इयर्स की वैल्यू टाइम पीरियड दिया हुआ है, 10 इयर्स में इस अमाउंट को डिवाइड कर देंगे। 1/4/16 को हमने ये प्रॉपर्टी लीज होल्ड पे दी थी। लीज होल्ड का मतलब होता है कि 2, 5, 10, 20 साल के लिए हम एडवांस में पेमेंट, एक हमारी जो प्रॉपर्टी है किसी पार्टी को दे देंगे और उनके पास से कुछ प्रॉपर्टी पैसे वन टाइम में ले लेंगे। तो हमने 60,000 रुपीज़ में उसको सोल्ड आउट किया हुआ है। आज 1/4/16 और आज 31 मार्च 17, मतलब 1 साल कंप्लीट हुआ। तो 1 साल का उसको हम लिखेंगे रिटर्न ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी। सो 10 इयर्स में उसको डिवाइड करते हैं तो ये 6,000 होगा, बाहर आ जाएगा 54,000। आपकी जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी थी 60,000 की, उसमें से 6,000 कम हो गया। रिटर्न ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी, रिटर्न ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी। ओके फ्रेंड्स, सो इतना आपका जो इफेक्ट है वो हो गया। एक और सीक्रेट एंट्री है, लोन टू ब्रह्मा। लोन ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा ने आपको 50,000 की लोन दी हुई है। ये बेसिक नियम आपको ध्यान रखना है। वी हैव डिस्कस अर्लियर ऑन चैप्टर 1 कि व्हेन एनी पार्टनर गिव्स लोन टू द फर्म, वो लोन की जो अमाउंट है उस पर 6%, अगर नहीं कहा हुआ कुछ भी तो 6% आपको लोन देना ही देना है। तो 50,000 का आप 6% निकालें तो 50,000 इंटू 6%। लेकिन कब दिया लोन उन्होंने, 1 जुलाई 16 को। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, तो 5 + 4 9 मंथ का हो गया। सो विल कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 9 मंथ्स। तो 0 0 0 0 6 2 12 225, 25 9 225। इन दिस पे 2250, 2250 रुपये क्या करना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन टू ब्रह्मा, और यहाँ पर ब्रह्मा अकाउंट में 2250 ऐड करते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रायल बैलेंस शीट एंट्रीज एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज। फ्रेंड्स, थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करता हूँ। अब टोटलिंग करके उसका बैलेंस निकालने की इफेक्ट हम आगे करेंगे। तो आप भी, अगर आप गिन रहे हैं तो वीडियो को पॉज करें और आप भी कैलकुलेट करें खुद अपने आप से। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वी हैव डन द ऑल ट्रांजैक्शंस, टोटलिंग ऑल्सो। फ्रेंड्स, एज वी हैव डिस्कस अर्लियर ऑन कि पार्टनर से रिलेटेड कोई भी एंट्री होगी तो हम लोग उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डालेंगे। एक चीज़ खास ध्यान रखना, बुक में कोई ऐसी एंट्रियां हैं जैसे पार्टनर से जो लोन दिया हुआ है,
हालांकि वो पार्टनर्स से रिलेटेड ही है और पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही आना चाहिए और हमने वहाँ पर ही दिखाया था। लेकिन बुक में कुछ ऐसा इशू है कि भाई उसको वहाँ ना दिखाकर हम क्या करेंगे, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। कोई इशू नहीं है, खर्चा तो है ही हमारा। सो हम पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ब्रह्मा का 2250, हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देंगे इंस्टेड ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर वहाँ दिखाते तो कोई इशू नहीं, आंसर सेम आएगा। और दूसरी एंट्री हम पार्टनर्स अकाउंट में दिखाते थे, उसके बदले में हम भी आउटस्टैंडिंग है, लाइबिलिटी है, तो कहाँ दिखाएंगे इसको हम लोग, बैलेंस शीट। सो डूइंग द टोटलिंग आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टोटल किया तो आया 10650, डिफरेंस निकाला, डेबिट सारे खर्चों को माइनस करने के बाद वी विल गेट 68,750 एज नेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। अब ये जो प्रॉफिट आया हुआ है उसे हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऑन द क्रेडिट साइड। यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट होगा, कोई ऐड करने के लिए रकम नहीं है, बस सामने डेबिट करने के लिए एक रकम 9000 की है, डिडक्ट करेंगे तो आएगा 59,750। ये जो रकम आई है इसे हम बोलेंगे नेट डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे इसको, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, जिसे हम अलॉट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन से रेशियो में, उनका जो रेशियो है 3:2 वट एवर द रेशियो इज गिवन, उस रेशियो में डिवाइड करते हैं तो 35,850 और 23,900 प्रॉफिट आएगा। दिस प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड, यहाँ डेबिट था तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड हम पोस्ट करेंगे इस रकम को। और आफ्टर दैट पोस्टिंग दिस वन हम टोटल करेंगे तो ब्रह्मा का टोटल आएगा 95,850, विष्णु का आएगा 72,900। डेबिट साइड माइनस करने के लिए एक ही इफेक्ट है आपकी ड्राइंग्स की 5,000 की, उसे माइनस करते हैं हम लोग तो आपका कैरी फॉरवर्ड आएगा 90,850 एंड 67,900। ठीक है फ्रेंड्स, आफ्टर डूइंग दिस वन यहाँ अगेन ये डेबिट साइड है तो जो बैलेंस में जाएगा तो क्रेडिट साइड। खास ध्यान रखना फ्रेंड्स की लायबिलिटी आपकी क्रेडिट होती है और एक्स्ट्रा आपकी क्या होती है, डेबिट होती है। तो कैपिटल को यहाँ पोस्ट करते हैं, टोटल मार के बाहर निकालते हैं, सारे एंट्रियों को टोटल करते हैं तो आपकी लायबिलिटी टोटल है 2,44,000। सामने की ओर चेक करते हैं और फिर डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस नहीं निकलेगा, दोनों साइड का टोटल क्या हो जाएगा 2,44,000 मैच मिलेगा। फ्रेंड्स खास चीज़ हमें भी ध्यान रखनी है कि दोनों साइड का टोटल क्या हो जाना चाहिए, मैच। अगर आपका दोनों साइड का टोटल मैच होता है तो आपके 11 मार्क्स कहीं नहीं गए। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फाइनल अकाउंट्स फ्रेंड्स। दिस इज द स्मॉलेस्ट क्वेश्चन दैट आई हैव टेकन टुडे। आफ्टर दिस लेक्चर आपके बड़े बड़े क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, तो जो लोग अवेयर नहीं हैं वो आप अवेयरनेस पे आ जाओ, जो पढ़ नहीं रहे हैं वो पढ़ने लग जाओ। ठीक है, सो सम्स आर क्वाइट लेंथी, 11 मार्क का क्वेश्चन है आपका। अगर आपने अच्छी तरह से इसकी प्रिपरेशन कर ली तो आपको स्कोर करने में ईजी रहेगा। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।